کیا ہو اگر آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کوئی بڑا قدم نہ ہو بلکہ صرف ایک الارم گھڑی سیٹ کرنا ہو؟ یہ کہانی ہے اس شخص کی جو زندگی کے نچلے ترین مقام پر کھڑا تھا۔ نہ کوئی بچت نہ کوئی امید، اور مستقبل ایک اداس دہرائے جانے والے دن کی طرح لگتا تھا۔ پھر اسے ایک عجیب سی سادہ عادت ملی جس نے اس کی زندگی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ راز کوئی وراثت خوش قسمتی نہیں تھا، بلکہ سورج نکلنے سے پہلے کے خاموش گھنٹوں کا عزم تھا۔ ایک عزم جو صرف 3 مہینوں میں اس کی زندگی کا رخ موڑ دے گا۔ اس نے ان خاموش صبحوں میں جو کچھ پایا وہ آپ کو اپنی عادات پر غور کرنے پر مجبور کر دے گا۔ شاید یہی وہ کڑی ہے جو آپ ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کہانی میں جانے سے پہلے میں آپ سے جڑنا چاہتا ہوں۔ سوچیں، آپ ابھی یہ سنتے ہوئے کہاں ہیں؟ آپ کے پاس کیا وقت ہے؟ آپ دنیا کے کس حصے میں ہیں؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئے تو لائک بٹن دبائیں اور ٹیلز کو سبسکرائب کریں۔ ایک شہر میں جو مشینری کی آوازوں سے گونجتا تھا، وہاں ایک 32 سالہ نوجوان رہتا تھا جسے ہم آرتھر کہیں گے۔ آرتھر ایک بڑے گودام میں نائٹ سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا تھا۔ ہر رات 8 بجے وہ ڈیوٹی شروع کرتا اور صبح 6 بجے تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ اس کی تنخواہ بہت معمولی تھی، بمشکل گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کا گھر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ چھت کا پنکھا ٹوٹا ہوا تھا، گرمی سے کوئی نجات نہیں تھی۔ وہ فرش پر بچھی ہوئی پتلی چٹائی پر سوتا تھا۔ اکیلے بلب کی روشنی جب بجلی کمزور ہوتی تو ٹمٹماتی تھی۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، جوتوں میں سوراخ تھے جن سے بارش کا پانی اندر آتا تھا۔ لیکن آرتھر کا دکھ صرف غربت تک محدود نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی زندگی میں قیدی تھا، ایک ایسے چکر میں پھنسا جسے توڑنا ناممکن لگتا تھا۔ ہر صبح جب وہ گھر واپس آتا تو شہر کی زندگی جاگ اٹھتی تھی۔ وہ دوسروں کی کھڑکیوں سے جھانکتا، خاندان ناشتے پر ہنس رہے ہیں، بچے اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لوگ اپنے دفاتر جا رہے ہیں۔ اور آرتھر سوچتا، کیا میری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ وہ سو کر آ رہا تھا جب باقی دنیا جاگ رہی تھی۔ اس نے بہتر زندگی کے لیے کوشش کی تھی۔ اس نے نوکریوں کے لیے درخواستیں دیں، لیکن اس کے پاس صرف میٹرک تھا، اس لیے ہر دروازہ بند تھا۔ اس نے نئے ہنر سیکھنا چاہے، لیکن پوری رات کی ڈیوٹی کے بعد وہ اتنا تھکا ہوتا کہ پڑھ نہیں پاتا تھا۔ اس کی ماں دیہات میں رہتی تھی۔ ہر اتوار کو فون آتا، آرتھر میرے بیٹے، تیری زندگی کب سنورے گی؟ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، مرنے سے پہلے تجھے کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ آرتھر خوش ہونے کا ڈرامہ کرتا، جلد ہی اماں میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ اسے راستہ نہیں معلوم تھا۔ سب سے تکلیف دہ حقیقت یہ تھی کہ وہ سست نہیں تھا۔ وہ پوری رات محنت کرتا، 4 میل چلتا، اپنی ڈیوٹی پوری کرتا۔ لیکن محنت اکیلے کچھ نہیں بدل رہی تھی۔ وہ ایک ایسی زندگی میں محنت کر رہا تھا جو کہیں نہیں جا رہی تھی۔ ہر صبح جب وہ 7 بجے بستر پر گرتا اور شام 4 بجے اٹھتا تو اسے لگتا جیسے وہ الفالٹ زندگی جی رہا ہے۔ دنیا آگے بڑھ رہی تھی اور وہ پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک خیال اسے بار بار آتا، کوئی اور راستہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کیسے؟ پھر ایک سرد نومبر کی صبح آرتھر کی ڈیوٹی ختم ہوتے ہی فون بجا۔ اس کی بہن تھی۔ آرتھر، ابھی گھر آؤ، اماں کو آ گیا ہے، ہسپتال میں ہے۔ اس کا دل دھک سے رک گیا۔ اس نے پہلی بس پکڑی۔ 3 گھنٹے کا سفر ایک زمانہ لگا۔ جب وہ چھوٹے سے کلینک پہنچا تو اس کی ماں بستر پر تھی، کمزور مگر ہوش میں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ تھکاوٹ اور دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ انہیں آرام، اچھی خوراک اور دوائیں چاہیے تھیں جو وہ نہیں خرید سکتا تھا۔ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا، آرتھر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ بیٹا، اپنی زندگی مت ضائع کرنا جیسے میں نے کی۔ کوئی راستہ ڈھونڈ، مجھ سے وعدہ کر۔ وہ آرتھر اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کی جھریوں والے ہاتھ دیکھتا رہا۔ وہ ہاتھ جو کھیتوں میں برسوں کام کر چکے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ راتوں کو کام کرتا تھا۔ دونوں محنت کر رہے تھے لیکن کہیں نہیں پہنچ رہے تھے۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ غم نہیں، اپنی بے بسی پر غصہ۔ وہ کلینک سے باہر آیا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ گاؤں سو رہا تھا مگر چند کسان پہلے ہی اپنے کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔ پرندے گانے لگے تھے، ہوا ٹھنڈی اور تازہ تھی۔ اس خاموش صبح میں کھڑے ہو کر آرتھر نے فیصلہ کیا، بس اب اور نہیں۔ میں ایسے نہیں جیوں گا۔ کوئی راستہ ڈھونڈوں گا، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ واپسی کی بس میں آرتھر کی نظر ایک شخص پر پڑی۔
50 साला अच्छा सूट पहने किताब पढ़ रहा था, पुरसुकून लग रहा था। आर्थर ने इसे पहचान लिया, मिस्टर हैरिसन शहर के कामयाब ताजिर। आर्थर को चौंका देने वाली बात वक्त थी। सुबह के 6 बजे थे। एक कामयाब आदमी आम बस में सफर कर रहा था। आर्थर ने हिम्मत की, मुआफ कीजिए सर, आप इतने सुबह बस में क्यों हैं? मिस्टर हैरिसन ने किताब से नजर उठाई, क्योंकि मैं हर सुबह 4:30 बजे उठता हूं। ये वक्त पढ़ने, सोचने और दिन की मंसूबा बंदी करने के लिए इस्तेमाल करता हूं, इससे पहले कि दुनिया जागे। लेकिन नींद नहीं आती, आर्थर ने हैरान होकर पूछा। मैं रात 9 बजे सोता हूं, 7.5 घंटे की नींद पूरी हो जाती है। मिस्टर हैरिसन ने आर्थर का थका हुआ चेहरा देखा। तुम रात की ड्यूटी करते हो? जी सर, सिक्योरिटी गार्ड। और सोते कब हो? सुबह 7 से शाम 4 बजे तक। मिस्टर हैरिसन ने सोचा, तो तुम जागते हो जब दुनिया सोती है और सोते हो जब दुनिया काम करती है। कोई ताज्जुब नहीं कि फंसे हुए हो। इसने आगे झक कर कहा, मैं तुम्हें 30 साल पहले सीखा हुआ एक राज बताता हूं। सुबह 5 से 7 बजे के दरमियान के 2 घंटे जादुई हैं। इसी वक्त तुम वो जिंदगी बना सकते हो जो तुम चाहते हो, जब बाकी दुनिया अभी ख्वाब देख रही होती है। आर्थर को उम्मीद की एक किरण नजर आई। लेकिन कैसे? मैं सुबह 6 बजे तक काम करता हूं, मुझे नींद चाहिए। तो अपनी नींद का वक्त बदलो, मिस्टर हैरिसन ने कहा। 6:30 पर सो जाओ, 11:30 पर उठो। 5 घंटे काफी है। फिर पूरी दोपहर और शाम तुम अपनी हकीकी जिंदगी जी सकते हो। और अगर काम बदल सको तो मुस्तकिल तौर पर 5 बजे उठने की आदत डाल लो, यही राज है। मिस्टर हैरिसन ने एक कार्ड पर फोन नंबर लिख कर दिया। अगर संजीदा हो तो मुझे फोन करो। मैं बताऊंगा कि सुबह के इन घंटों में क्या करना है। लेकिन याद रखना, इसके लिए नज्म और ज़ब्त चाहिए, जो अक्सर लोगों में नहीं होता। क्या तुम संजीदा हो? बस आर्थर के स्टेशन पर पहुंची। इसने कार्ड देखा। मैं संजीदा हूं, इसने कहा। कल से शुरू। इस शाम आर्थर ने वो किया जो कभी नहीं किया था, मिस्टर हैरिसन को फोन किया। अगले दिन बरसों में पहली बार आर्थर दिन में जाग रहा था। वो एक कैफे में मिले। मिस्टर हैरिसन ने कहा, तुमने नींद का वक्त बदल लिया। अच्छा, ज्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं, तुमने अमल किया। अब मैं सिखाता हूं कि क्या करना है। इसने एक नोटबुक निकाली। आर्थर, अपनी जिंदगी एक घर की तरह समझो। अभी तुम्हारा घर अंधेरा, ठंडा और टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी बुनियाद नहीं बनाई, बस जिंदा रहने की दौड़ में हो। सुबह 5 से 7 बजे तक का वक्त बुनियाद बनाने का वक्त है। जब बाकी दुनिया सो रही हो, तुम मुस्तकबिल तामीर कर रहे हो। 2 घंटे रोजाना, हफ्ते में 14 घंटे, महीने में 60 घंटे, साल में 730 घंटे। ये नो मुकम्मल काम के हफ्तों के बराबर है जो तुम मुफ्त हासिल कर रहे हो, सिर्फ जल्दी उठकर। आर्थर की आंखें फैल गईं। 9 हफ्ते। अब सुनो कि इन 2 घंटों में क्या करना है। मिस्टर हैरिसन बोले, ये निज़ाम तयशदा है। पहला घंटा 5 से 6, हुनर सीखो। कोई ऐसा हुनर जो तुम्हारी माली हालत बदल सके। ना टीवी ना मोबाइल, बस सीखना। ऑनलाइन कोर्सेज मुफ्त हैं, यूट्यूब पर सब कुछ है, कोई उज़र नहीं। दूसरा घंटा 6 से 7, जिस्म और दिमाग बनाओ। 30 मिनट वर्जिश, चहल कदमी, दौड़ खींचाओ। तुम्हारा जिस्म तुम्हारी गाड़ी है, अगर ये टूट गई तो कुछ नहीं बचा। फिर 30 मिनट पढ़ो, दिन की मंसूबा बंदी करो, असीखी हुई चीज पर अमल करो। मिस्टर हैरिसन ने 3 उसूल बताए। एक, कोई सौदा नहीं। 5 बजे हर रोज उठो, छुट्टियों पर भी। कोई आज छोड़ दूं नहीं, यही नाकामी का रास्ता है। 2, रात 9 बजे सो जाओ, नींद से धोखा नहीं होता। 3, पहला हफ्ता जहन्नम होगा। जिस्म चलाएगा, दिमाग बहाने बनाएगा। लेकिन बर्दाश्त करो। 21 दिन बाद आदत बन जाएगी, 90 दिन बाद तुम वही बन जाओगे। मिस्टर हैरिसन ने संजीदा होकर कहा, मैं तुम्हें 3 महीने देता हूं। 90 दिन, 5 बजे उठना, पहले घंटे हुनर सीखना, दूसरे में खुद को संवारना। 90 दिन बाद मेरे पास आना, दुखाना क्या बनाया है। अगर काम किया तो बेहतर नौकरी दिलवाऊंगा, वरना फोन मत करना। कामयाबी उन्हें मिलती है जो मुश्किल वक्त में हाजिर होते हैं। आर्थर को चैलेंज का बोझ लगा, मगर बरसों बाद इसे कुछ और भी मिला, मकसद। मैं करूंगा, इसने कहा, मैं नहीं हारूंगा। देखेंगे, मिस्टर हैरिसन।
मुस्कराए। सब यही कहते हैं। अगली सुबह 5 बजे अलार्म बजा। आर्थर का पूरा जिस्म चीख उठा, दिमाग सरगोशी करने लगा। बस 1 घंटा और बहुत थका हुआ है। लेकिन इसे माँ का चेहरा याद आया, मिस्टर हैरिसन का चैलेंज, अपना वादा। इसने कंबल आतारा और खड़ा हो गया। पहला हफ्ता बहुत मुश्किल था। आर्थर हर सुबह खुद को अलिफाटेता, जिस्म दर्द करता, आंखें जलत, मगर वो रुका नहीं। 6 बजे वो पड़ोस में चहल कदमी करता, फिर अकाउंटिंग के मज़ामीन पढ़ता। इसने ये हुनर चुना था क्योंकि हर कारोबार को इसकी ज़रूरत होती है। 7:30 बजे वो बिस्तर पर गिरता और दोपहर 2 बजे उठता, फिर रात की ड्यूटी के लिए तैयार होता। ये थका देने वाला तन्हा सफ़र था। कोई नहीं समझता था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। मगर 20वें दिन के करीब कुछ बदला। एक सुबह आर्थर अलार्म से 2 मिनट पहले 4:58 पर जाग गया। इसका जिस्म ढल गया था और पहली बार इसे गुस्सा नहीं बल्कि तैयारी महसूस हुई। एक्सेल ट्यूटोरियल्स समझ आने लगे, फार्मूले, डेटा एनालिसिस, अकाउंटिंग के बुनियादी उसूल। इसने पहला ऑनलाइन सर्टिफिकेट मुकम्मल किया। सुबह की चहल कदमी इसे पसंद आने लगी, सूरज तुलू, खामोश गलियां, और ये एहसास कि जब दुनिया सो रही है वो अपना मुस्तकबिल बना रहा है। दूसरे महीने के आखिर तक आर्थर ने अकाउंटिंग और एक्सेल में 3 ऑनलाइन कोर्सेज मुकम्मल कर लिए। वज़न कम हो गया, दिमाग तेज हो गया, एतमाद बढ़ गया। साथी काम करने वालों ने महसूस किया, आर्थर तुम मुख्तलिफ लग रहे हो, सेहतमंद। क्या बदला? वो मुस्कुराता, मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं, 2 घंटे फी दिन। तीसरे महीने आर्थर ने सीखा हुआ इस्तेमाल किया। इसने एक्सेल में एक सादा स्प्रेडशीट बनाई जो गोदाम की इन्वेंट्री को मुनज़्ज़म करती थी। कंपनी ने कभी ऐसा नहीं किया था। इसने अपने सुपरवाइजर को दिखाया। आर्थर ये कहाँ से सीखा? मैं सुबह 5 बजे उठकर खुद सिखाता हूँ, शिफ्ट से पहले। ये बात सुपरवाइजर से मैनेजर तक, फिर मालिक तक पहुंची। इस 80वें दिन आर्थर को दफ्तर बुलाया गया। आर्थर, हम अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बढ़ा रहे हैं। हमें कोई ऐसा चाहिए जो गोदाम के काम को समझता हो और बुनियादी बिक कीपिंग जानता हो। ये पोस्ट तुम्हारे लिए है अगर चाहो तो। डे शिफ्ट, तनख्वाह डबल। वो आर्थर खामोश खड़ा रहा। 3 महीने पहले वो एक बेबस नाइट गार्ड था, अब इसे कैरियर की पेशकश हो रही थी। कब शुरू करूं? इसने पूछा। अगले पीर से। इस शाम आर्थर ने मिस्टर हैरिसन को फोन किया। मिस्टर हैरिसन, मैंने कर दिखाया। एक दिन भी नहीं छोड़ा, हर सुबह 5 बजे उठा। और आज मुझे प्रमोशन मिल गई। वो दूसरी तरफ खामोशी, फिर मिस्टर हैरिसन की आवाज फखर से भरी, मुझे मालूम था तुम में तब्दीली की चिंगारी थी। याद रखना, 5 बजे उठना बंद मत करना। ये कोई हिकमत अमली नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी है। मैं नहीं रोकूंगा, वो आर्थर ने कहा। ये अब मैं हूं। 1 साल बाद आर्थर कंपनी का लीड अकाउंटेंट था। इसने इतना बचा लिया कि मां को शहर बिला सके, उनका इलाज करवा सके और एक अच्छा 2 कमरे का अपार्टमेंट किराए पर ले सके। और हर सुबह 5 बजे वो फिर भी उठता, इसलिए नहीं कि इसे करना था, बल्कि इस्लाम। ये कि वो 2 घंटे इसके लिए मुक़द्दस थे। वो नए सॉफ्टवेयर सीखता, कारोबारी किताबें पढ़ता, मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करता। साथी पूछते, आर्थर तुम कामयाब हो गए, फिर इतनी सुबह क्यों उठते हो? वो मुस्कुराता, कामयाबी मंजिल नहीं, रोज़मर्रा की मश्क है, और मेरी मश्क 5 बजे शुरू होती है। मेरे दोस्त, आर्थर की कहानी इस बात का सबूत है कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। कल नहीं, जब हालात बेहतर होंगे, नहीं बल्कि अभी। कल सुबह 5 बजे से शुरू करो। तुम कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हो, इसका फर्क जहानत, किस्मत, मेहनत नहीं, बल्कि वो वक्त है जब बाकी दुनिया सो रही होती है। सुबह 5 से 7 बजे के दरमियान दुनिया खामोश होती है। कोई नोटिफिकेशन, कोई मीटिंग, कोई खलल। तुम्हारी कुव्वत इरादी उरूज पर होती है, दिमाग ताज़ा होता है। यही वक्त है जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हारी जिंदगी का रुख मोड़ दे। कामयाब लोग ये जानते हैं, यही वजह है कि एवज खिलाड़ी और लीडर जल्दी उठते हैं। वो मावराए इंसान नहीं, वो समझते हैं कि सुबह जीतना दिन जीतना है। तो ये रहा तुम्हारा चैलेंज, वही चैलेंज जो मिस्टर हैरिसन ने आर्थर को दिया था। पहला कदम, आज रात अलार्म सुबह 5 बजे लगाओ, 5:15 या 5:30 नहीं, बिल्कुल 5 बजे। फोन कमरे के दूसरी तरफ रखो ताकि अलिफाटे ना पड़े। दूसरा कदम,
फैसला करो कि पहले घंटे में क्या बनाओगे, कोई नया हुनर, कारोबारी आइडिया, सर्टिफिकेशन। एक चीज चुनो और 90 दिन के लिए अहद करो। तीसरा कदम, रात 9 बजे सोने का वक्त महफूज करो, देर तक जाग कर जल्दी नहीं अल्फाटे सकते। सिलसिलावार देखना बंद करो, बेमकसद स्क्रोलिंग छोड़ दो। नींद दुश्मन नहीं, ज़ाए शदा शामे दुश्मन है। मैं तुमसे वदा करता हूं, अगर तुम 90 दिन तक हर सुबह 5 बजे उठे और इन 2 घंटों को मकसद से इस्तेमाल करो तो तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी। शायद तुम करोड़पति ना बनूं, शायद फौरी प्रमोशन ना मिले, लेकिन तुम एक मुख्तलिफ इंसान बन जाओगे। ज्यादा मजबूत, ज्यादा मुनज़्ज़म, ज्यादा काबिल। और वो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तुम्हारा मुस्तकबिल का खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इस अलार्म घड़ी के दूसरी तरफ। आर्थर के पास कुछ नहीं था, ना डिग्री, ना राब्ते, ना पैसे, सिर्फ जल्दी उठने और बनाने का इंतखाब। तुम्हारे पास इससे ज्यादा है। तुम ये वीडियो देख रहे हो यानी तुम्हारे पास इंटरनेट, तालीम और मौका है। बस एक सवाल बाकी है, क्या तुम इसे इस्तेमाल करोगे? कल दोबारा सोने का बटन दबाओगे और 5 साल बाद सोचोगे कि कुछ क्यों नहीं बदला। अगर तुम 5 बजे अलिफाटेनी वाली तहरीक में शामिल होने के लिए तैयार हो तो अभी लाइक बटन दबाओ, ये तुम्हारा अहद हो। फिर नीचे कमेंट में बताओ कल अपने पहले घंटे में क्या बनाओगे। आपस में एक दूसरे को जवाब दे रखेंगे। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। ये वीडियो इस शख्स को शेयर करो जो कहता है कि बदलना चाहता है मगर करता नहीं, शायद यही इसकी जरूरत है। हर हफ्ते हम ऐसे लोगों की कहानियां लाते हैं जिन्होंने जिंदगी बदली और वो कदम बताते हैं जो इन्होंने उठाए। आर्थर के अल्फा ज़ोए याद रखना, कामयाबी मंजिल नहीं, रोजमर्रा की मश्क है, और वो मश्क कल सुबह 5 बजे शुरू होती है। क्या तुम जाग रहे होगे? तुम्हारा मुस्तकबिल खुद तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इस अलार्म घड़ी के दूसरी तरफ। इसे मजीद इंतजार मत करवाओ।